औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू my students. I hope all of you are fine and you are doing your studies very well and you are preparing your diary on daily basis and preparing well for your stand-up examination. I wish you best of luck. So my dear students, in today's English class, lecture number 17 is there, and today we are going to revise lecture number 5, daffodils, its summary and exercise. First of all, let's revise its question answers. Question number 1 is there. What is the central idea of the poem? The central idea of the poem is that it reflects the beautiful impact of nature on human mind and soul. Second one question is there. What do the daffodils represent in the poem? Daffodils represent the beauty of nature. Okay, daffodils are plural, that's why we are omitting the s with represent. Okay, most of the students make mistake here. They also add s with represent and it will be wrong grammatically. Daffodils are plural. Question number 3 is, what wealth do memories of the scene give to the poet? The memories of the scene give the wealth of natural beauty, spiritual joy and pleasure to the poet. Next question, list the words that heighten the sound effect in the poem. The words that heighten the sound effect in the poem are cloud, crowd, hills and daffodils. Last one question is there, how has the poet heightened the impact of the poem by using the figurative language? The poet has heightened the impact of poem by using the figurative language such as simile, metaphor and personification. Now it's the turn to revise the summary. This poem Daffodils has been written by William Wordsworth. He is known as the poet of nature. He is an ardent lover of nature. Most of his poems describe the nature and its beauty. In this poem, he describes the experience of enjoyment at the sight of beautiful daffodils and healthy, purifying and enduring impact of nature on human beings. Second paragraph is, once he was walking in the countryside, he came across a large number of daffodils growing along the bank of lake. These flowers were moving and dancing in the breeze. They appeared to be as continuous as the twinkling stars of galaxy. He kept on watching them as for a long time. The poet was delighted to see such a beautiful sight. This sight left a lasting impression on his memory and it became a permanent source of pleasure for him. Whenever, he remembers this sight, his heart fills with pleasure and he gets relief from feeling of loneliness. Next is the turn of exercise. The first one exercise is figures of speech that has been used in this poem. Figurative language, simile, metaphor, personification and what is imagery. Let's see what is simile. A simile is a figure of speech in which like or as is used to make a comparison between two ideas that are basically dissimilar. बज़ाहिर दो जो एक दूसरे के अपोजिट चीज़ें होती हैं उनको एक दूसरे के साथ कंपेयर करना. डिसिमिलर मतलब जो एक जैसी नहीं होती, जो यकसा नहीं होती, उनको एक दूसरे के साथ कंपेयर करना, उनका मवाजना करना, उनका मुकाबला करना दो अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए, लाइक या एज. ठीक है, जिस भी सेंटेंस में लाइक और एज का वर्ड आ जाए उसको हम सिमिली कहते हैं. ये कंपैरिजन जो है ना
पाया जाता है दो चीज़ों के दरमियान। फॉर एग्जाम्पल देखें, हर आइज़ ट्विंकल्ड लाइक स्टार्स, उसकी आंखें चमकी या झपकी सितारों की तरह। शी वाज एज बिजी एज अ बी, जैसा कि शहद की मक्खी शहद बनाने में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होती है, उसका काम ही मसरूफियत वाला होता है, फूलों से पत्तों से जूस को चूसना, सक करना और फिर उससे उसी से शहद बनाना, और उसका कंटिन्यूस काम रहता है, इसलिए उसको बिज़ी कहा जाता है। शी वॉज एज बिज़ी, वो इस तरह मसरूफ़ थी जिस तरह शहद की मक्खी। द नेक्स्ट वन इज़ मेटाफर। इफ़ वी राइट अ कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स and omit mean finish the word like, then we are using metaphor। जब दो ही चीज़ों के दरमियान में हम कंपैरिजन कर रहे हों लेकिन उसमें हम like और as का वर्ड ना लिखें तो उसको हम मेटाफर कहते हैं। एग्जांपल्स देखें, he proved a lion in the fight, यानी कि उसने अपने आप को शेर की तरह, खुद को एक शेर साबित किया लड़ाई में। His heart is red, red rose, उसका दिल सुर्ख है जैसा कि सुर्ख गुलाब होता है। लेकिन इसमें देख लें वर्ड लाइक और एज नहीं है, इसलिए इसको मेटाफर कहेंगे। नेक्स्ट वन इज़ पर्सोनिफिकेशन। इट इज़ टू बी नोटेड, इट इज़ अ फिगरेटिव लैंग्वेज टेक्निक where an object or idea is given human characteristics or qualities। ये एक ऐसी फिगरेटिव लैंग्वेज है, ऐसी टेक्निक है जिसमें किसी भी आइडिया को, किसी भी ऑब्जेक्ट को ह्यूमन क्वालिटी या ह्यूमन की करेक्टरिस्टिक्स दी जाती हैं। ठीक है, मतलब कि एक नॉन ह्यूमन चीज़ को ह्यूमन क्वालिटी दी जाती है, उसको हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। लेट्स सी द एग्जांपल्स। द कैंडल फ्लेम डांस्ड इन द डार्क। अब क्या चीज़ यहाँ पे डांस कर रही है? कैंडल फ्लेम, मोमबत्ती का जो शोला है, ये एक नॉन ह्यूमन थिंग है, मीन नॉन लिविंग थिंग है, और इसका काम डांस करना नहीं होता। ठीक है, वो तो जस्ट हल्का सा हवा की वजह से मूव कर रहा होता है, लेकिन उसकी इस खसूसियत को डांस कहा जाता है। डांस चूँकि ह्यूमन क्वालिटी है, इसलिए इसको हम पर्सोनिफिकेशन कहेंगे। ओके, द सनफ्लावर्स नॉडेड इन द विंड। नॉड का मीनिंग होता है सर हिलाना, हाँ में या ना में सर हिलाना। तो सूरजमुखी का फूल चूँकि बहुत बड़ा होता है, जहाँ जहाँ सूरज जाता है उसी को वो फेस करता है, तो वो उसी तरह उसका जो फूल है वो मूव करता है, तो उसको हाँ या ना में सर हिलाने से तशबीह दी गई है जहाँ पे, और जहाँ पे नॉडेड है फूलों के साथ इसको, नॉन ह्यूमन चीज़ के साथ इसको तशबीह दी गई है, इसको ये क्वालिटी दी गई है। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। जब भी any human quality is given to non-human thing, that is called personification. Next one is imagery. Imagery is the construction of details used to create mental images in the mind of the reader। पढ़ते हुए इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करना कि जो पढ़ने वाला है उसके माइंड में वो सारे इमेजेस क्रिएट होते जा रहे हैं, उसको इमेजरी कहते हैं। इमेजरी डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है, through the visual sense as well as the senses of touch, smell, taste and sound। ठीक है, राइटिंग में इस तरह के वर्ड्स यूज़ करना कि हमें पता चले कि वो देखने में कैसी हैं, वो टच करने में कैसी हैं, स्मेल करने में कैसी हैं, टेस्ट उनका कैसे बयान किया जा रहा है राइटिंग में, साउंड कैसे बयान की जा रही है। इसको हम जैसी जैसी वो राइटिंग में वो वर्ड्स यूज़ किए जा रहे होंगे वैसा इमेज हमारे माइंड में, रीडर के माइंड में वो क्रिएट होता जाता है। दैट इज़ कॉल्ड इमेजरी। लेट्स सी द एग्जांपल्स। विजुअल में क्या इसकी मिसाल हो सकती है? फॉर एग्जांपल, ह्यूज ट्रीज इन द थिक एंड डार्क फॉरेस्ट। तो जब ये आप पढ़ रहे होंगे तो आपके माइंड में बड़े बड़े दरख्त और बहुत घना और तारीक जंगल आपके माइंड में आने लग जाएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे भी कोई विजुअल चीज़ को बयान किया जा रहा होगा वैसा ही सीन आपके माइंड में आएगा। ऑडिटरी कैसे हो सकते हैं? द रसलिंग ऑफ लीव्स, जैसे पत्ते आपस में एक दूसरे से टकराते हैं तो उनकी साउंड कैसी होती है, वो कैसी साउंड प्रोड्यूस करते हैं, वो हमारी माइंड में फ़ौरन से आ जाती है। स्मेल, सेंट ऑफ एप्पल्स, जैसा कि किसी भी टेक्स्ट में लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल सेंट ऑफ एप्पल्स, सेंट ऑफ रोज़,
ओके, तो हमारे माइंड में फ़ौरन से आ जाता है क्योंकि हमने इन चीज़ों को देखा हुआ है, हमने इन चीज़ों को महसूस किया हुआ होता है। टेस्ट, स्वीट एंड जूसी ऑरेंजेस, तो हमें पता होता है कि ऑरेंजेस का टेस्ट कैसा होता है। टच, रग्ड, रग्ड मीन रफ, खुरदरी, एंड रफ पाथ, तो रफ पाथ भी हमारे माइंड में आने लग जाएगा। पथरीला रास्ता होता है या अनइवन जो रास्ता होता है वो हमारे माइंड में आएगा। दीज आर द थिंग्स कॉल्ड इमेजिनरी। Next one is, here is a list of a few simile, metaphors and personification. Can you identify them? Write S for simile, M for metaphor and P for personification. Let's see. Time is money. वक्त एक दौलत है, वक्त को दौलत से कंपेयर किया गया है और एज और लाइक के बगैर किया गया है, दैट इज मेटाफर। एज बिजी एज अ बी, दिस इज सिमिली। The wind whispered in the rumors of the forest, personification. As gentle as a lamb, simile. The sorry engine wheezed its death cough, personification. The heart of lion, metaphor. The apple of my eye, metaphor. As cunning as a fox, simile. Brown grass was begging for water, personification. As wise as an owl, simile. Blanket of snow, metaphor. As black as a crow, simile. Next is vocabulary portion. Use desirous to find 3 more synonyms of the following words. Saw, glance, gaze. Saw mean observed, glance look, gaze stare. ये 6 वर्ड्स हैं, ये 6 के 6 एक दूसरे के सिनोनिम के तौर पे इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू द नेचर, अकॉर्डिंग टू द यूज इन द सेंटेंस, देयर मीनिंग कैन बी डिफरेंट। नेक्स्ट इज शाइन, ट्विंकल, स्पार्कल, ग्लिटर, ग्लिमर, फ्लैश, ग्लीम, ये सब के सब एक ही मीनिंग रखते हैं, चमकना। किस तरह का चमकना, इट कैन बी डिफरेंट, लेकिन सबका मीनिंग सेम है। नेक्स्ट इज कॉनोटेशन। कॉनोटेशन मीन कनेक्शन विद योर फीलिंग्स। कॉनोटेशन मीन्स द एटीट्यूड एंड फीलिंग एसोसिएटेड विद अ वर्ड एज अपोज्ड टू इट्स लिटरल मीनिंग। ज़ाहिरी मतलब और उसके इस्तिलाही मतलब में क्या कनेक्शन है, या किसी भी वर्ड का आपकी फीलिंग्स के साथ क्या कनेक्शन है, उसको हम कॉनोटेशन कहते हैं। जैसा कि सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड इज कॉल्ड लोनलीनेस, ठीक है। सॉलिट्यूड अ पॉजिटिव कॉनोटेशन, लोनली अ नेगेटिव कॉनोटेशन। सॉलिट्यूड का मतलब ही तन्हाई है, लोनली का मतलब भी तन्हा होना ही है, लेकिन सॉलिट्यूड का वर्ड हमेशा पॉजिटिव सेंस में यूज़ किया जाता है। जब भी आपके सामने लोनली का वर्ड यूज़ किया जाएगा, आपके माइंड में हमेशा नेगेटिव बात आएगी कि कोई अकेला है, तन्हा है, किसी वजह से है। अगर सॉलिट्यूड की बात आए तो हमेशा माइंड में यही आता है कि इबादत की वजह से तन्हाई इख्तियार की गई है या हलवत इख्तियार की गई है, या किसी भी पॉजिटिव काम के लिए या स्टडी के लिए सॉलिट्यूशन में है, तो इसको हम पॉजिटिव कॉनोटेशन में कहेंगे, ठीक है। किसी भी वर्ड का आपकी फीलिंग्स के साथ क्या कनेक्शन है, इसलिए भी कॉनोटेशन में ही आता है। कोई भी एटीट्यूड जो फीलिंग है वो एसोसिएट करता है किसी वर्ड का अपोज टू इट्स लिटरल मीनिंग। ओके, लेट्स सी स्पेसिफाई पॉजिटिव एंड नेगेटिव कॉनोटेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। गेज, गेज का मीनिंग है लुक, देखना, ठीक है। जैसा कि पोएम में बताया गया है कि पोइट ने ब्यूटीफुल डैफोडिल्स को गेज किया था, ठीक है, उसने देखा था तो उसको अच्छा लगा था, दैट मीन्स इट इज़ पॉजिटिव कॉनोटेशन। स्टेयर, स्टेयर का मतलब होता है टिकटिकी बांध कर किसी चीज़ को देखे जाना। फिक्स्ड लुक, दैट इज़ नेगेटिव कॉनोटेशन। शाइन, ग्लीम, चमकना, सितारे चमकते हैं, रोशनियाँ चमकती हैं, तो ये पॉजिटिव। किसी का फेस खुशी के साथ शाइन कर रहा है, ग्लीम कर रहा है, तो ये भी पॉजिटिविटी में आएगा। ग्लेयर, ग्लेयर मीन गुस्से से देखना, त्योरी चढ़ाकर देखना। स्काउल, दैट इज़ आल्सो अ नेगेटिव कॉनोटेशन। होल्ड, होल्ड का मतलब होता है ज़हीरा अंदोज़ी कर लेना, स्टोर करना, नेगेटिव। ज़हीरा अंदोज़ी करना किसी भी चीज़ का नेगेटिव सेंस में ही आता है। कलेक्ट,
गैदर, इकट्ठा करना, लोगों को इकट्ठा करना, जमा करना, गैदर करना, दैट इज पॉजिटिव। नेक्स्ट इज कंजंक्शंस। कंजंक्शंस join words and sentences. There are two kinds of conjunctions, coordinating conjunctions and subordinating. What are their functions? Coordinating conjunction, these conjunctions join sentences of equal rank, and subordinating conjunction join sentences one of which is dependent on the other. इसमें जो दोनों एक ही तरह के सेंटेंसेस हैं, दोनों में इक्वलिटी है, तो उसके लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज़ होगी। और जिसमें एक क्लास, एक सेंटेंस दूसरे पे डिपेंड कर रहा है या एक वर्ड दूसरे पे डिपेंड कर रहा है, दैट इज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। लेट्स सी द एग्जांपल। कोऑर्डिनेटिंग बट, आर, नॉर, ईदर, आल्सो, हाउएवर, ओनली, सो, हेंस, and subordinating because, that, while, unless, as, when, since, if, though. 5 blanks are there. Let's see. We have to put conjunctions. He ran fast dash, he missed the train. He ran fast but he missed the train. Wait dash, I return. Wait till I return. Work hard dash, you should fail. Work hard lest you should fail. मेहनत करो ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ. I did not come, मैं नहीं आया. क्यों? You did not invite me, because you did not invite me. अब यहाँ पे देखें, I did not come, मैं नहीं आया. क्यों नहीं आया? अब ये वाला सेंटेंस डिपेंड कर रहा है इस पे, द सेकेंड वन सेंटेंस पे. और कंजंक्शन इसके लिए क्या यूज़ होगी? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. बिकॉज, बिकॉज मैं इसलिए नहीं है क्योंकि तुमने मुझे इनवाइट नहीं किया. बिकॉज यू डिड नॉट इनवाइट मी. यू विल गेट अ प्राइज इफ़ यू डिज़र्व इट. आप इनाम हासिल करोगे अगर आप इसके हकदार होगे. ठीक है, ये भी सेंटेंस जो है, फर्स्ट वाला सेंटेंस डिपेंड कर रहा है सेकंड पे. दैट्स वाई सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हैज़ बीन यूज्ड हियर. So my dear students, note down today's diary. You have to learn and practice the exercise of unit number 5 and revise its summary and question answers. Wish you best of luck. Stay blessed and Allah Hafiz.